He has varied experience in customs, central excise, service tax, and various directorates of this department. He is MSc in mathematics and MBA from Swinburne University, Melbourne, Australia. He has represented India in Indo-Sri Lanka bilateral talks and international conferences. He is a path breaker and a great thinker. He is bestowed with quality of foreseeing the problems and nipping them in the bud. Sir has been a friend, philosopher, and a guide to most of us. He always maintains his calmness and serenity even in the extreme flight or fight situations and overcomes them by his sheer grit and perseverance. I take this opportunity to extend warm welcome to our esteemed guest of honor, Sri S. Samesh, Honorable Member CBEC and Special Secretary Government of India, New Delhi. Now, dear friends, we have with us Ms. Babita Phogat, who won many wrestling championships in India and abroad, and her sister Geeta Phogat had won the first women wrestling gold medal for India in Commonwealth Games 2010. Ms. Babita Phogat won silver medal apart from many other national and international medals. More than that, they have won many social battles and surmounted all the hurdles which came in their way to reach such heights. Coming from an unknown village, Balali of Haryana, they have contributed to the change in the mindset of the people of Haryana. Their path-breaking struggle and success has brought about a change in the mindset of public about girl child throughout India. Revenue Fraternity salutes you for your courage and strength. Amir Khan, inspired by the determination of their father Sri Mahavir Singh Phogat to make them wrestlers, has made the famous movie Dangal based on their life, which portrays the great determination and sacrifices made by them. I extend a warm welcome to our celebrated wrestler, Ms. Babita Phogat, and also her elder sister, Ms. Geeta Phogat. Friends, we have with us Ms. Archana Pandey Tiwari, Chief Commissioner of Central Excise, Delhi. She is the Chief Executive of the Central Revenue Sports and Cultural Board. I thank her for accepting our invitation and represent CRSCB on this Founders Day 2017. I extend warm welcome to Ms. Archana Pandey Tiwari as the Chief Executive of CRSCB. Finally, I extend warm welcome to the media representatives for their coverage of their spectacular event. And certainly, I have great persons from the Bollywood, and they are sitting in front of me. I cannot forget them. I wholeheartedly welcome them on this event. Before I close, I would like to read few lines of celebrated poet Dr. Harvansh Rai Bachchan, which may inspire our sportsmen and sportswomen. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। Honorable Cabinet Minister Shri Vinod Tavade, Member CBC Shri Ramesh, Babita Phogat, the International Achiever,
Chief Commissioner Shri Vashne, and senior officers, other dignitaries of the two departments, artists from the Bollywood. We are all here to actually watch all of you rather hearing our speeches. So I'll make it very short. I'm supposed to read a small report. So it is a real privilege for me to have this opportunity of welcoming the minister, the international achievers, and others who have graced the occasion. I also welcome the president, senior vice president, and zonal presidents and other officials of the Central Revenue Sports and Cultural Board, and all the officers and their families for participating with us on this occasion of CRSCB Founders Day 2016-17. Sir, being Executive Secretary of the CRSCB, I take this opportunity to formally convey our thanks and gratitude to you for being with us on this day. We eagerly look forward to your continuous support in various spheres of activities in and outside our offices. Before I present the annual report of activities of CRSCB during the year 2016-17, a brief background of the constitution and functioning, it is pertinent to mention that the board was earlier titled as Central Revenue Sports Board and was constituted in the year 1968 and was institutionalized on a formal level on 4th January 1979 with the objective of encouraging the employees of the CBDT and CBEC to participate in sports. Wonderful film Dangal. Babita, the stage is yours. मंच पर विराजमान श्री विनोद तांडवे सर और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर और श्री रमेश जी ऑनरेबल स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ मेंबर्स सीबीईसी और मिस्टर अर्चना पांडे प्रिंसिपल और एंड सेक्रेटरी एंड वेलकम श्री एससी चीफ कमिश्नर वासनी जी एंड विराट कोहली जी, पद्मश्री विराट कोहली जी और राज प्रसाद कमिश्नर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट और हमारे यहाँ पर विराजमान सभी मेरे छोटे बड़े बहन भाई और मेरे माता पिता समान, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पूछना चाहती हूँ, दंगल मूवी किस किसने देखी है? और सभी ने देखी है। तो आप लोगों को मेरी स्टोरी पता होगी कि कैसे मेरे फैमिली ने और खासकर मेरे पिता ने कितनी मेहनत करके हमें यहाँ पे पहुँचाए हैं। क्योंकि हम रेसलिंग करते थे तो लोग हमें रेसलिंग करते थे तो थोड़ा बहुत लोग हमें जानते थे, लेकिन हमारी मेहनत हमें रेसलिंग में लाने वाला और यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे पेरेंट्स को कोई नहीं पहचानता था। तो इस मूवी से मेरे पेरेंट्स को एक पहचान मिली, जिन्होंने इतनी मेहनत करके समाज से लड़के, परिवार से लड़के यहाँ पे पहुँचाया है। तो बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन भी होंगे कि मूवी में क्या सच है क्या झूठ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मूवी के अंदर जो दिखाया है वो 99% सच है और मेहनत तो कम से कम उससे बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो एक गाने के अंदर ही ख़त्म कर दिया गया है। और जैसे दिखाया है मूवी के अंदर कि अलार्म बंद किए हैं, ऐसे पता नहीं बहुत से हमने प्रैक्टिस से बचने के बहुत से उपाय किए हैं। और हम तो इंतज़ार करते थे कि रेस्ट, क्योंकि मेरे पापा ने कभी भी रेस्ट नहीं दिया। कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई ट्यूसडे नहीं, किसी भी दिन किसी भी टाइम कोई रेस्ट नहीं होता था। और बच्चों के ऊपर इतना जुल्म हम पापा को डायरेक्ट जाके नहीं बोल सकते थे, लेकिन अपनी मम्मी को हम जाके बोलते थे कि मम्मी रेस्ट तो एक मशीन को भी चाहिए होता है, हम तो फिर भी इंसान हैं, हमें भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो मम्मी कहती थी बेटा जैसे आपके पापा करते हैं वैसे करते जाओ। तो मम्मी भी हमारे स्पोर्ट में नहीं थी, कभी कभार पापा नहीं होते थे घर पे तो हम ऐसे ही ग्राउंड के ऊपर थोड़ा मौज मस्ती करते थे। तो मम्मी देखती थी कि आज प्रैक्टिस नहीं कर रहे
जैसे ही पापा आए पापा को बताते थे कि आज इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, तो हम कहते थे कि पापा तो थे ही थे, आप भी पापा के साथ ही हैं, कभी तो हमें रेस्ट लेने दो। लेकिन उनकी वजह ही है क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि हमारा भविष्य क्या था। बच्चों को इतना नहीं पता होता, उनके पेरेंट्स ही उनका भविष्य अच्छे से जानते हैं कि उनका भविष्य क्या है। और मेरे पेरेंट्स ने हमें एक राह दिखाई और हम उस राह पे चले, और हमारी और मेरे पेरेंट्स की जो मेहनत थी वो आज हमें यहाँ पे लेके आई है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे माँ बाप को, और मैं चाहूँगी कि हर किसी लड़की को ऐसे ही माँ बाप मिले जैसे हमें मिले हैं, और मैं हर जन्म में ऐसे ही माँ बाप पाना चाहती हूँ जैसे इस जन्म में मुझे मिले हैं। और हर उस लड़की को कहना चाहूँगी जो बाहर जाने से डरती हैं, उस पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी जो समाज की बातें सुन के, ये सब चीज़ें सुन के जो लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि हरियाणा में तो लड़कियों को घूंघट अभी भी घूंघट में ही रखते, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अगर मेरे पेरेंट्स वहाँ से उस समाज से निकाल के हमें यहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुँचा सकते। तो ये सुन के मुझे दुख भी होता है कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चियों को इसलिए बाहर नहीं जाने देते कि ये सब कि समाज पता नहीं क्या कहेगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या है समाज, कौन है लोग? हमारा समाज हमसे शुरू होता है और हम पे ही खत्म होता है। हम है तो समाज, हम नहीं है समाज नहीं है। तो हर एक लड़की को धाकड़ होने की जरूरत है, और साथ के साथ उनके पेरेंट्स को भी धाकड़ होने की जरूरत है। और मुझे पता चला यहाँ पे कि सर ने अभी मुझे बताया कि पूछा मेरे से कि क्या आपके पास एकेडमी है, तो मैंने कहा नहीं सर, हमारे पास एकेडमी नहीं है। तो सर ने मुझे अभी बोला कि हम आपको जगह देंगे और यहाँ पे एकेडमी खोलेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए इतना सोचा, वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने इतना सोचा। और मुझे यहाँ पे आके जो सम्मान और प्यार दिया है आप लोगों ने, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। That was a fiery speech. धन्यवाद बबीता जी, बहुत ही सुंदर भाषण दिया। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आपके माताजी पिताजी को आपने जो बोला उनके बारे में हम टेप भेजने वाले हैं। Yeah. And a big thank you to Shri Vinod Tawde for having agreed to make land available to Babita's family to start an academy here. Okay, without much ado, may I now also invite our chief guest is also in a bit of a hurry. May I invite him to first make an address to the gathering, and after that I would request him to also distribute some trophies. Sir, Mr. Vinod Tawde, please get your hands together for the Honorable Minister in charge of Education, Sports and Youth Affairs of the Government of Maharashtra. Mr. S. Ramesh, Special Secretary and Member of CBEC, Varshne ji, Chief Commissioner, Central Excise, Mumbai, S.R. Prasad, Commissioner Service Tax, Archana Pandey ji, Tiwari, Commissioner, Central Excise, Delhi, Principal Commissioner, and Babita Fogart, सब जानते ही हैं। जब मुझे इनकम टैक्स के कमिश्नर का फ़ोन आया तो डर गया, कहाँ बुला है, कहीं फंस तो नहीं गया, मोदी जी के पास कुछ पहुंच तो नहीं गया। एक फ़ोन से इतना डर जाते हैं आज इतने लोगों के सामने। लेकिन सुनील शेट्टी जी अगर साथ है तो फिर कोई डर नहीं है वैसे। But really, it is I'm feeling very honored. Nowadays, we are very much busy with the local municipal corporation elections. So I already told Commissioner, गलती से मैं मतदाता भाई और बहनों शुरू कर दूंगा और इलेक्शन कमीशन की मुझे नोटिस मिल जाएगी, फिर गवर्नमेंट अफसरों को आपने कैंपेन किया वगैरह। लेकिन एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर इट इज़ माई ड्यूटी, एज अ कल्चर मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इट इज़ माई ड्यूटी टू अटेंड सच अ गुड फंक्शन। और स्पेशली जब डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद आप बाकी सब चीज़ों में इतने व्यस्त होने के बाद भी इतनी अच्छी तरह खेलकर इतने अच्छे कुछ अभी शायद इनकम टैक्स के
कोई स्टाफ मेंबर, he has entered Ranji also. We have gone to the international level. Some of the your sports persons. So income tax में फिगर्स के साथ खेलना और बाकी इसमें तो आप माहिर हो सकते हैं, लेकिन फील्ड पर भी इतनी अच्छी तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा हम भी जब राजनीति में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि अगर किसी बात पर थोड़ा किसी ने ये सोचा कि ये नहीं हुआ है, छोड़ो यार, शो द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मुझे लगता है ये खेल से जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है, वो सीनियर, जूनियर, इंटरमीडिएट, ये कमिश्नर है, ये ऑफिसर है, ये इंस्पेक्टर है, ये सब भूलकर मैदान में ऑल आर प्लेयर्स, आई थिंक दैट हेल्प्स टू मेक अ गुड टीम। And nowadays, number of management gurus also, when they have the management workshop 2 days, 3 days, the day they begin the management workshop, they begin with the games and bring all at one level, because खेल ऐसी चीज़ है जिसमें सभी को एक लेवल पे लाया जाता है। वो अपने अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर हो या कोई अलग काम करता हो। और इसलिए मुझे लगता है कि क्रीड़ा मंत्री के नाते जब मैं सोचता हूँ तो इस प्रकार कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व होना भी है, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड आई ऑल्सो होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ एजुकेशन, तो मुझे बार बार याद आता है कि जब हम खेलने जाते थे तो घर वाले कहते थे, माताजी पिताजी, कि खेलने से कोई मार्क नहीं बढ़ते, पढ़ाई करो। हमारे पिताजी कोई बबीता जी जैसे नहीं थे, सरकारी कर्मचारी थे, तो खेलने से कोई मार्क नहीं बढ़ते। तो शिक्षा मंत्री होने के बाद मैंने ये तय किया कि खेलने से मार्क बढ़ने चाहिए, और इसलिए जो जो बच्चा सप्ताह में 5 दिन मैदान में जाके खेलेगा उसको फाइनल एग्जाम में 10 मार्क्स हम ज़्यादा देंगे। और इसका कारण यह है कि वो टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जो अटका हुआ, कम से कम 1 घंटा खुले मैदान में खेले और इससे बाहर निकल कर आए। और दूसरी बात सुना करते थे, खेलने से कोई पेट नहीं भरता है। और वो भी मैंने तय किया कि हम महाराष्ट्र में हमारी अलग अलग कॉरपोरेशंस है, जिला परिषद है, गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स टैक्स और ये है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी एक 5-6 खेलों की टीम हो, और उस टीम में आप ये स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट करो, वो ऑफिस नहीं जाएंगे, खेलेंगे और आगे चलकर शायद नेशनल लेवल पे जाएंगे। इसे 20-25 अलग अलग टीम्स बनती है 8-10 खेलों की, तो मैं मानता हूं कि उतने स्पोर्ट्स पर्सन्स को कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट जॉब उसके द्वारा मिल सकती है। इसलिए खेलने से पेट भी भरता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। बबीता जी का उस फिल्म में 99% सच है, ये सुनकर मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। गीता से आप ज़्यादा इमोशनल और टारगेटेड थी, आपके कारण गीता आगे बढ़ी, अदरवाइज गीता कुड नॉट हैव सक्सीडेड। और इसलिए नॉट ओनली अ स्पोर्ट्स पर्सन बट बबीता, यू आर अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। और ऐसे खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, उनको महाराष्ट्र में आमंत्रित करना मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं। आप यहाँ आइए, हम आपको एकेडमी खोल के देंगे एंड यू टीच आवर गर्ल्स ऑफ महाराष्ट्र कि रेसलिंग कैसे खेलना होता है। और महाराष्ट्र से भी हम कोई बबीता और गीता बनाना चाहते हैं, और आपके द्वारा वो बनेगा, ये विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। और ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन निर्माण करने के लिए कोई स्पॉन्सर्स लगे तो आपसे नाम ले लूंगा। थैंक यू। Thank you, Shri Tavde. As most of you are aware, today we are also taking the opportunity to felicitate 15 outstanding sports persons amongst us, amongst the revenue departments, who have excelled not just for the department, they've represented their states, and many of them have gone on to represent India and bring glory to India
some at the World Stage, some at the Commonwealth Games, some at the Asian Games. And to kickstart the presentations, may I invite our Honorable Minister, Shri Vinod Tawde, to do the honors. The first recipient is Manju Bala, Inspector Income Tax, and listen to her achievements. Reserve a very generous round of applause for this champion, silver medalist in the hammer throw at the 17th Asian Games held at Incheon in October 2014. She's also gold medal winner in hammer throw at the National and Interstate Championship from 2012. She's also won a gold medal at the Federation Cup. Silver medalist at the Incheon Games, Manju Bala, Inspector Income Tax, Delhi. Give her a very big round of applause. Made India.